अगले कुछ घंटे इस पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। मेरे साथ सीमानंद जी है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मानती थी मेरे बच्चों को क्या क्या मुझे करना है, और शुरुआत इस पे हुई कि आई ऑलवेज वर्क विद स्टोरीज। मैं कहानियाँ, मिथोलॉजीज, नैरेटिव्स पे काम करती हूँ, बिकॉज आई बिलीव दैट दे आर सो पावरफुल। क्योंकि जिस तरह की हम कहानियाँ बताते हैं, आई पर्टिकुलरली वर्क विद वुमेन्स नैरेटिव्स, उन कहानियों से हमारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है फॉर वुमेन। तो अब अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें, अपने कहने की 20 weirdly they're not like Valentine's Day, they're not for couples. These were done, ये ladies celebrate करती थी, rituals ladies के हाथ में थे, and they were for the earth, to bring her to her pleasure. So all that erotic vocabulary उसको transfer किया जाता था through rituals to the earth. So this is where we actually come from. They say कि जब कामदेव की हत्या की जाती है, when शिवजी जब भस्म कर देते हैं कामदेव को, तो रति his wife, वो अपने आप को मारना चाहती है। She says I don't want to live. So बाकी सारे देव देवता कहते हैं कि no, you can't, because दुनिया can't exist without love, desire, प्रेम, मोहब्बत। इसके बिना दुनिया कैसे एग्जिस्ट करेगी? So you carry on his work, and eventually हम वापस ले आएंगे कामदेव को। So most of the texts are written by her. ज़रा सुनते हैं, इसलिए मैं हमारे पुराने शास्त्रों के बारे में बात कर रही हूँ, which is always exciting, लोगों को अच्छा लगता है, but also क्योंकि जो कामसूत्र के बारे नॉर्मली हमने सीखा, even when I started studying it, what did we think कि ये एक positions पर किताब है, that's it, right? Maybe because जो actually, which most people still think, which we are trying to change, but maybe because I'm actually bringing out the Shringar Ras that it was written with, and the little tiny stories, because they're truly beautiful. I don't know. I hope that that's the reason. I don't know. When I say this, he's much older than me. He's 73. I चाहती हैं, so ज़रा जल्दी से बात करती हैं, because they need to get that out before somebody interrupts them. आदमी बड़े आराम से बैठ के बात करते हैं, because they know कि सुनेंगे लोग उनके आसपास. He would, but कैसे confidence से वो कहते हैं चीज़ें. 3 मार्क है इसकी वजह। निगो पूरी महिलाओं की ही है। एग्जैक्टली, ठीक है। इट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट। अवेलेबिलिटी ज्यादा सिखाई जाती है। मे बी आपको एक बात बताऊं? हाँ। आई थिंक मोस्ट मेन आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल। ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने रिसेंटली 2 यंग मेल सेक्स वर्कर्स के साथ इंटरव्यू की थी, and they told me कि उनके most of the, I mean 70 to 80% of their clients are straight married men. एक आदमी ने लिखा कि his wife has just died and he said कि support नहीं चाहिए उनसे, but I find pleasure better over there. एक और आदमी ने लिखा, he's a much younger man, saying कि मैं मेरे दिमाग में ये था, I wanted to experiment, I've been now to somebody, and वो इतना ज़्यादा pleasurable था that I am now starting to worry, क्योंकि हम लोग labels ऐसे दे देते हैं ना, they are hard and fast labels. Okay. वो और बात है इसके जो desires, in fact मैंने एक event किया था इधर दिल्ली में couple of years ago. And at the end, एक बहुत young आदमी, very young, I think he was 25, हाल ही में शादी हुई उसकी, and this was actually quite scary. He came up to me at the end of it and he said, क्योंकि मैं pleasure के बारे में बात कर रही थी, sex के बारे नहीं, there's a big difference, okay, we're going to talk about that. Pleasure is very different to sex. So he comes up to me and he says कि are you married? I said yes. He said, नहीं, मतलब, are you still married? I said, yes. He said, अच्छा, बच्चे भी हैं? I said, हाँ, 3 हैं. Then he went quiet. I said, क्या हुआ? He said, नहीं, जिस तरह से आप बोल रही थी, I thought कि आप divorce हो चुकी हैं and now you are exploring pleasure. तो लोगों को ये भी लगता है कि अपनी बीवी के साथ या husband के साथ pleasure explore नहीं किया जा सकता. एक सवाल उसने नहीं पूछा.
वो कौन सा? Are you happily married? But okay, we'll come to that in a minute. कि ये है तैयार नहीं है. They have to feel that I am somebody else's property. I'm sorry, I'm married. Then they'll say, अच्छा, sorry. Another man owns you. It's okay. They won't hit on you. Well, not as much. If you say, I am not married, but I don't want you, they will keep trying to convince you. So that's one thing. But I just feel कि लोगों को लगता है, and I felt really bad क्योंकि this guy is very young. आप सोचिए how young he is. इतनी नई शादी उसकी हुई है and he is already thinking कि अगर truly pleasure explore करना है वो बीवी के साथ नहीं हो सकता, because we have this, right? We have this conditioning कि ये girlfriend material है, ये wife material है, उसके साथ इसी तरह से सलूक हो सकता. You have that perception, unfortunately. You think कि ये आगे जाकर how soon will he get into an affair? It is likely to happen far sooner, right? You're not. He needs a project. I'm his project. I'm the only thing that occupies his mind. In conversations को लेके husband को Some things should be private. मेरी family life private है. मैं as a matter of fact जब मैं काम पर भी जाती हूँ, like if I have work events, I don't take my family. I never take my husband along to that. एक तो he has some very weird political opinions. हम थोड़ा नहीं में आ जाए. हाँ, sorry. एक तो उनकी जो politics हैं, political चीज़ें जो statements, वो जरा सी off the charts हैं, जो I don't मोदी जी agree के with. fan हो गए. He is more right wing. I'm completely left wing. But ये इसका एक दूसरा पॉइंट हो गया. okay, ठीक है, we'll do it another time. But yeah, एक तो and I don't answer questions कि वो, because लोग ये भी कहेंगे all the word क्या मुझसे कहा है सबसे ज्यादा, क्या शिकायत है सबसे ज्यादा, क्या सबसे ज्यादा शिकायत का या क्या चीज आपको रोकने के लिए कहा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होकर भी कई बार इंसान कुछ कहता रहता है जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव हुआ हो. So बस और तो कुछ है नहीं करने को. I'm not busy with anything else. तो इस पे या अगर आप चेंज कीजिए. It is about आज मैंने ये रील बनाई, आज मेरी ये मीटिंग हुई, he'll tell me कि पॉलिटिक्स में आज नया क्या उन्होंने सुना, जो भी, बट जो दिन की बातें होती हैं we do that. बट हमने ये सोच रखा है that we ask him to skip, क्योंकि that's the first thing. जब हम कहते हैं ना कि वो attraction, attention, interest जब lose कर जाए, you forget what it feels like to just touch somebody else's skin. वो जो warmth होती है और किसी को पकड़ने की, that thing of just holding somebody, क्योंकि when you're just cuddling or hugging at any other time, it's not the same. इसमें जो intimacy है without pressure, it is absolutely fantastic. And इससे होता ये है that it keeps your relationship जुड़ा हुआ, because you're still together. And जैसे you enjoy that time. I mean, I love the feel of his skin under my hand. It's warm. It feels nice. You're cuddling. Pressure बिल्कुल नहीं है. You extend that time. मुझे लगता है कि okay 15 मिनट पहले because I'd be अच्छा नहीं मुझे उठ के फिर ये करना है, मुझे वो करना है, मैं टाइमर लगा के करती थी. Now I don't put a timer. We let it go on to whatever time we want. So this is how हमने ये hurdle overcome किया, because I also travel a lot. मैं जब वापस जाती हूँ, मेरे और मीटिंग्स हैं, काम है, ये है, वो है. There is this thing in your head कि oh my God, I have to stop and I have to do this. होता है. We all have that thing in our head. लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी. There is also a certain age. हमारी अब शादी को 40 साल हो गए. On the 1st of December, 40 years. There's a certain pattern that you fall into. It happens. You have to figure out कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है. You have to, and going out and cheating is not the way. Especially, कभी cheat किया किसी ने उन्होंने, because उनकी needs ज़्यादा है. I hope not, but I don't know. I really don't know, because, and I'll tell you something. If it has ever happened, क्योंकि मैं बहुत travel करती हूँ, and I feel कि ये trust अगर हमें बनाए रखना है, I have to do my part in it. So I have to believe in what he says, और मैं खुद को I have to make sure that I maintain the boundaries at all times. ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, अभी ताजमहल ट्विंकल खन्ना का इशू आया था, इसमें बहुत चर्चित रहा ये हिस्सा, दो हिस्से चर्चित रहे. एक हिस्सा जिसमें ट्विंकल ने कहा था इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डैमेज करती है फिजिकल चीटिंग से. एक उम्र के बाद रियलाइज होता है, शी सेड दिस जर्नी तो हमारी उम्र की होगी तब तुम्हें रियलाइज होगा कि फिजिकल चीटिंग होता रहता है, चल जाता है, कभी कभार गलती हो गई. इमोशनल चीटिंग ज़्यादा डैमेज करती है. Yeah, I don't agree with that. I think कि ये बहुत प्रॉब्लम रही है again, and I'll tell you why I think it's a damaging thing to say. क्योंकि ये जो stereotype है, ये बन गया है. So जब young couples मेरे पास आते हैं, especially if they're going out together या newly married or whatever, so आदमी कहेगा कि भाई मेरे तो hookups थे, doesn't mean anything, पर तुम्हारी relationship थी जहाँ you were in love, that means it's much worse. तो उसको, औरत को, लड़की को manipulate किया जाता है इसको कहकर. In fact, ना तो कोई भी sex, चाहे आप कह दीजिए कि oh it meant nothing, emotions हमेशा involve होते हैं, चाहे आप जो label दे दीजिए उन emotions को. And just because men are not taught कि emotions acknowledge करना चाहिए, doesn't mean that emotions are not there. They're there, and actually it's worse for the men, क्योंकि फिर वो acknowledge नहीं कर पाते, फिर वो emotions और तरह निकल के आते हैं. But no, you cannot rank cheating. You cannot say ये थोड़ी बहुत cheating है, ये अच्छी वाली cheating है, ये बुरी वाली cheating है, ये ऐसे नहीं हो सकता. आपके बच्चों ने कभी कहा कि आपकी बातें उन्हें सहज करती हैं? Actually मेरे बच्चे have been, मेरे बच्चे have been amazing. They've been my biggest support. Actually क्योंकि शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था, मेरे हस्बैंड ने आकर कई कुछ कहा था मुझे.
कि यू कांट डू दिस, हमारी नाक कट रही है, लोग तुम्हें स्लट कहेंगे etc. देश की संस्कृति को तुम बिगाड़ रही हो, वो तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। एंड माय किड्स टोल्ड हिम कि अगर किसी ने आके मम्मी को स्लट कहा तो योर जॉब इज टू शट देम अप, नॉट टू से कि मम्मी तुम आके ऐसे क्यों कर रही हो। फिर पंजाबी समझिए, मेरे या समझौता कर लिया उन्होंने कि ठीक है जो करी को मतलब नहीं है, उधर सोचना नहीं मेरे को। नाउ ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट, नाउ तो ऑफ कोर्स ही इज थ्रिल्ड, बट शुरू में देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वी फेस दैट, बट माय किड्स आर अमेजिंग, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। अब पहले सवाल से शुरू करते हैं, जो पहला सवाल जो हम छोड़ा था, सेक्स एंड प्लेजर में क्या डिफरेंस है? ओके, क्योंकि कॉमन परसेप्शन उसी से प्लेजर आता है। उसी से प्लेजर आता है, बट हाउ इज इट, हाउ डज इट बिल्ड अप। आपने एक बात कही थी अर्लियर अबाउट शक्ति। सो इन एंशिएंट इंडिया दे बिलीव कि प्लेजर शक्ति है, शक्ति इज अ प्लेजर इज अ शक्ति, कि इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल। तो जब ये शक्ति हमें जागृत होती है, व्हाट हैपेंस, इट वेक्स यू अप, ऑल योर नर्व एंडिंग्स कम अलाइव, योर ब्रेन स्टार्ट्स टू बज़, एवरीथिंग अबाउट यू बिकम्स डिफरेंट, यू आर सडनली अलाइव। प्लेजर का ऑपोजिट इज नम, कि जब वो मोनोटोनस हो जाती हैं चीज़ें, जब वो यू फील डेड, कुछ मायने नहीं रखते हैं। सो तो वी बिलीव कि ये अगर आप प्लेजर, यू नो व्हेन वी टॉक तंत्र में या इन ऑल ऑफ दीस रिचुअल्स, कि ये जो प्लेजर रेज करने का रिचुअल्स हैं, इसी के साथ यू रीच अ हायर कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट अबाउट सेक्सुअल प्लेजर, इट इज लिटरली कि आप अपनी शक्ति रेज कर रहे हैं अपने आप में। सो यू रीच अ हायर कॉन्शियसनेस बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता करके यू बिकम मोर एंड मोर अवेयर, यू गेट योर प्लेजर टू अ सर्टेन पॉइंट, यू सडनली रियलाइज कि अच्छा नाउ आई कैन फील दिस मच, टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज इट्स अबाउट बिल्डिंग सेल्फ अवेयरनेस। तो तंत्र में कहते हैं कि यू रेज योर प्लेजर, यू रेज योर शक्ति इतनी ज़्यादा कि आप इवेंचुअली इतने अवेयर हो जाएं कि यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स विद योर नेकेड आई। ये अवेयरनेस होनी चाहिए। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इतने ड्राउंड रहते हैं और कई चीज़ों में दैट योर ब्रेन बिकम्स नम। आधी चीज़ें आप सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, दे पासिंग यू बाय, वेरियस अदर थिंग्स। सो प्लेजर इज एक्चुअली वेयर यू फील एवरी लिटिल बिट इनसाइड यू। द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। द नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू ट्राई दैट, होल्ड बैक। जब कभी आप सोचें सेक्स के बारे, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छा ठीक है फोरप्ले से शुरू किया, किसिंग से शुरू किया, अब इस पॉइंट पर आए, अब पेनिट्रेशन हो गई, स्लो डाउन, एक्चुअली फील कि हर चीज़ जो आप कर रहे हैं, एवरी टच, उसकी सेंसेशन क्या है। आपने किताब लिखी थी आर्ट ऑफ सेडक्शन,